Am, the am, am I audible to you? Yes, ma'am, you are audible. I'm just waiting 2-3 minutes so that the people can join in, and then we will start straight away. Fine, fine. Okay, since it is 1 minute to go to five, so let the time be, and then we will start. Okay. I could see some people have joined, so let me start, and then they will listen to the recordings also. Good evening, everyone. Welcome back to my channel, Psychology Point. And I'm very grateful to you to join me for this important live session on mental health in schools. It's really very important these days to understand this and its importance. So now I would like you all to write in the comment section. First, let us get acquainted with each other from where you are joining in, and then we can proceed with the session. You can use the comment section to type in your responses. Okay, I could see many people. Please use your comment section to tell me the name and the yes. Okay, from Kanpur, ma'am, from Delhi. Okay, we have the resource person also today from Delhi. So great. Okay, Shanti ma'am has joined from Delhi. Sunita ma'am from Delhi. Someone you love from Kanpur. Okay. So we all know that schools are not just the places where children come to study. They are just like second home where they spend crucial formative years of their life. Today, in this world of competition and pressure of scoring a perfect 100 and constant digital pressure has created the need for mental health more than ever. Previously it was not so much, but today these children are exposed to the digital world, which is the main thing which is responsible for talking about the mental health and the other pressures which the children are facing. So in this session we are going to understand what is mental health, why it is essential in the schools, what challenges the children face in the school, what the how these challenges impact them, and also most importantly what we as teachers and parents do to help children thrive better. So for this, to start with it, I would like to introduce my resource person, Mrs. Shweta Sharma. She has been working since last 10 years as a counseling psychologist in Delhi. Let me introduce her in a formal way. Mrs. Shweta Sharma is a Delhi based counseling psychologist and mental health advocate with over a decade of experience. She holds a master's in applied psychology and postgraduate diploma in guidance and counseling and higher education. Since 2010, she has worked closely with adolescent parents, children with special needs, focusing on stress, anxiety, and emotional well being. Her approach beautifully integrates expressive arts and life skills training. Over the years, she led countless workshops
for students, educators, and NGOs promoting mental health, emotional intelligence, and resilience. I am really grateful to you, ma'am, for accepting my invitation and coming on my platform. It's my privilege. Thank you so much, Kavita ma'am, for inviting me on this platform and especially to choose this topic, which is actually required in today's time. As you have mentioned here, that the basically nowadays, when we are talking about students, when we are talking about schools, that why it is needed in school and why we need to talk about students' mental health. So we can see many of the students are involving in screen time and social media, and day by day, researchers have shown that many of these students are facing depression and anxiety and suicidal tendencies where we all the advocates have to work. So thank you so much once again, Kavita ma'am, for inviting me. Okay, so let's just start with the very basic question. What is mental health? I would like my viewers who are watching live to please surely answer this in the chat box so that I want to remove the stigma which is centering around this topic mental health. Mental health is perceived only as problem or as a disorder. Still, it is the stigma around it. So let's try to eradicate this stigma and get to know what is mental health. Please, if you could, those who are watching me live, please type in your perception of mental health. There is no correct or wrong answer to it. It is what you think. Okay, by the time the people are writing, let me continue and tell you all what I mean by mental health, what I mean by a mentally healthy person. Do you think a mentally healthy person is happy all the time? Sorry, then it's not like that. It is not like that. He has the skills to navigate himself through the challenges which he is facing. He is emotionally intelligent, resilient, and a self-aware individual. Okay, so we continue with ma'am and ask her. My first question to you, ma'am, is what is mental health according to you, and why it is so much essential for schools? Thank Over you to for you, your ma'am. question. Thank you for your question, Kavita ma'am. That's true. When we are talking about mental health, of course, it's not mental health is not only comprises of physical health कि आपकी खाली physical health के बारे में हम नहीं बात करते हैं. It is all about your social well-being. It is about your physical health. It is not like the absence of any illness. It is about हाउ यू फील इट इज अबाउट हाउ यू थिंक आप किस तरह से अपने इमोशन को रेगुलेट करते हैं उसके बारे में है हेल्थ के बारे में जब हम जैसे कि मेंटल हेल्थ एक हेल्थ का ही पार्ट है एज अ पर्सन एज अ पर्सोना व्हेन वी परसीव अ पर्सन तो उसकी एक फिजिक उसकी हेल्थ में वेलबींग में न सिर्फ मेंटल हेल्थ आती है उसकी फिजिकल हेल्थ आती है बल्कि उसकी सोशल वेलबींग भी आती है तो इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने प्रॉपरली इसको डिफाइन किया कि इट्स नॉट अबाउट हेल्थ इज नॉट अबाउट कि फिजिकल हेल्थ के बारे में ही हम बात करें या कोई डिसीज नहीं है तभी वो फिजिकल हेल्थ है इट्स अबाउट योर मेंटल हेल्थ हाउ यू थिंक आपके इमोशनली आप कैसे रेगुलेट करते हैं अपने इमोशंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इमोशंस आई मीन नेगेटिव है या पॉजिटिव है सिमिलरली आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसा है आप किस तरह से अपने बारे में सोचते हैं हाउ यू परसीव योर सेल्फ आपका सेल्फ एस्टीम आप हाउ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ इट्स ऑल कम्स अंडर मेंटल हेल्थ तो आपका साथ में सोशल वेलबींग कि हाउ यू इंटरैक्ट विद अदर्स आप किसी के साथ में कैसे रिलेशनशिप हैं आपके आप किसी के साथ में किस तरह से व्यवहार करते हैं या आपका जो सराउंडिंग्स है वहाँ पे किस तरह से आप परफॉर्म करते हैं so it's like all it's like when we are talking about mental health
So, what we think, what we perceive, how we navigate our issues, how we solve our problems, how we take decisions, it's all comes under mental. एक जनरल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, कई लोग ये सोचेंगे कि हम क्यों स्कूल में इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। वाई अ चाइल्ड, क्या एक छोटा बच्चा, क्या उसे कोई मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है? But nowadays, when we see, there are a lot of factors responsible for mental health issues कि कई ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि बच्चे को अगर किसी तरह का लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर किसी तरह का ब्रेन इश्यूज है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। या फिर कई ऐसे रीजन होते हैं, आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चे का बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली एनवायरनमेंट है, उसके पेरेंट्स बहुत अथॉरिटेटिव हैं, या किस तरह की फैमिली है, सिंगल पेरेंट है, या फिर किस तरह के सराउंडिंग है उसकी, किस तरह का एनवायरनमेंट उसे लर्न करने को मिल रहा है। इसके अलावा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, तो वहाँ पे आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। बच्चे का कहीं किसी तरह का ट्रॉमा तो नहीं उसने फेस करा है जिसकी वजह से उसे किसी तरह के इश्यू हो रहे हैं। तो स्कूल्स, क्योंकि स्कूल आर द सेकंड होम ऑफ अ पर्सन, सेकंड होम ऑफ अ चाइल्ड, जहाँ पे he has to interact with teachers, he has to interact with the counselor and staff and the peer group, and यहाँ पे parents, teachers and we all have to work together in a collaborative manner. So जैसा कि आपने कहा कि what is mental health, so basically a good mental health, एक person, when a person individual having a good mental health, so he can realize his ability, he can realize his strength, weaknesses, he can identify his problems, and he should know the skills that how we can regulate these problems. What are the coping strategies, हम किन तरीकों से अपनी problems को solve कर सकते हैं, and they can easily understand कि हाँ कहाँ पे मुझे positively आगे बढ़ना है for the productive work. So एक layman language में we can say it's basically, it's not कि mental disease ही कोई होगी तभी हम mental health issues हैं। उसके अलावा भी देयर आर मेनी मेनी केसेस आर देयर जो ये दिखाते हैं कि किस तरह से कितने इश्यूज स्कूल्स में पैदा होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और एडल्टहुड में जाके ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सो जैसा कि आपने कहा व्हाट इज द नीड, अभी क्या जरूरत है इन चीजों की, अगर हम स्कूल में देख रहे हैं, स्कूल इज फॉर द एकेडमिक्स, यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज होती हैं, बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखा जाता है, और आजकल स्कूल सीबीएसई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्किंग टुवर्ड्स स्कूल्स कि किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स के लिए वर्क करें और उनके बारे में सोचें कि उनको उनकी पर्सनालिटी किस तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका हो सकता है, उनकी पर्सनालिटी का। सो अगर मैं आपको कुछ रिसेंट बैक, बहुत सी ऐसी न्यूज़ आपने सुनी होंगी और हमारे व्यूअर्स ने भी सुनी होंगी, बहुत सी इस तरह की न्यूज़ देखने में आई हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी, जैसा कि अगर मैं कहूँ एडोलसेंट एज में बहुत से सुसाइडल केसेस ऐसे हुए हैं जो किसी जैसे पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा डाँटने की वजह से या फिर जो और भी रीज़न्स रहे हैं, तो इट हैज़ बीन सीन कि इंडिया हमारा थर्ड लीडिंग कंट्री बनता जा रहा है सुसाइडल टेंडेंसी के तहत, जहाँ पे कि बच्चों जो 15 से 20 साल तक के बच्चों में सबसे ज़्यादा इस तरह सुसाइडल टेंडेंसी देखी गई है। सिमिलरली हर 7 में से 1 बच्चा ऐसा होता है, ऐसा रिसर्चर्स बोलती हैं कि 7 में से 1 बच्चे को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं 10 से 19 साल तक के बच्चों को। तो these are the research, these are the stats that right now here, and हम अगर प्रीवियस न्यूज़ पे भी ध्यान दें तो बहुत सारे ऐसे केसेस आपने सुने होंगे कि बुलिंग की वजह से या फिर किसी के प्रेशर में, पीयर प्रेशर में बच्चों ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो उन्हें नहीं लेने चाहिए थे। तो भले ही बच्चे वो चीज़ कह नहीं रहे हैं और वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट और एज अ एडवोकेट्स, बट समवेयर वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, तो डेफिनेटली एक स्कूल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बच्चा अपने फॉर्मेटिव ईयर्स बिताता है, वेयर वी ऑल नीड टू वर्क फॉर आवर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट
तो उसका स्कूल एक फर्स्ट फैमिली ऑफ कोर्स एक फैमिली हो गई, बट द सेकंड फैमिली हमारा स्कूल है जहाँ पे वेयर वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। तो इसलिए आज के समय में बहुत ज़रूरत है मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करें, इसके स्टिग्मा को हम खत्म करें कि स्टूडेंट्स कैन टेक स्टेप्स एंड दे विल टॉक टू द काउंसलर, दे विल मूव टू द काउंसलर एंड दे विल डिस्कस देयर इश्यूज। इवन टीचर्स को हम इस तरह से इक्विप करें कि क्या किस तरह से हम अगर फर्स्ट केस उनके पास आता है तो हाउ वी कैन हैंडल दैट केस, राइट? सो ग्लोबली अगर हम देखें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी के हैं या फिर किसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर के हैं, जो क्लास 1 से लेकर 12 तक बच्चे फेस करते हैं। बट कई बार उस पे हम बात नहीं कर पा रहे होते हैं। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द एकेडमिक्स एंड हम सिर्फ वो रिजल्ट देख रहे होते हैं कि एकेडमिक बहुत पुअर रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, एकेडमिकली आप अच्छा नहीं कर रहे हो। और कई बार पेरेंट्स ऐसे शिकायत भी लेके आते हैं कि बिल्कुल आर्ग्यूमेंटिव हो गया है, बहुत एग्रेशन दिखाने लगा है, बात नहीं करता है बच्चा, या फिर आइसोलेशन में रहने लगा है, विड्रॉल टेंडेंसी हो गई है, इस तरह से बात भी नहीं करता है। व्हेन सारी फैमिली होती है तो बच्चे आते नहीं है हमसे बात करने। तो कई केसेस ऐसे हैं जो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिस पे हमें वर्क करना ज़रूरी है और जिसके बारे में स्कूल्स को एक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। Thank you, ma'am, for that explanation. I hope the viewers might have got a lot of idea about what is mental health. Now let's proceed into deeper. Let's try to understand what at different ages of our life we experience different psychological and emotional challenges. So now, ma'am, I would like you to throw the light on the challenges which the students in primary, secondary, and senior secondary section face. So over to you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Like you said, school is a area where we deal with the students from class 1 to 12, right? So we divide these classes into many stages, like primary area, primary and level, second middle level, secondary level, senior secondary level. We cannot say that all these students are feeling and facing same situation. Every child is unique. Their family surroundings, their environment is totally different. So each and child, every child is unique. So they all have to face different kind of issues. हो सकता है एक सिनेरियो में किसी बच्चे के साथ किसी और तरह की इश्यूज है, दूसरी सिनेरियो में किसी बच्चे के साथ किसी तरह के इश्यूज हैं. So we can divide our schools in these four areas. But of course, जब हम बात करते हैं प्राइमरी विंग, प्राइमरी लेवल की, तो प्राइमरी लेवल आपका स्टार्ट होता है क्लास नर्सरी और 1 टू 5 स्टूडेंट्स जिसमें रहते हैं, जो कि जनरली ये बच्चे होते हैं हमारे 4 साल से अराउंड शुरू होती है इनकी एज, और 10 साल तक अराउंड रहते हैं, 9 से 10 साल इस तरह से। बट ये जो स्टार्टिंग के ईयर होते हैं, ये मैक्सिमम इमिटेट बच्चे इस टाइम पे करते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ इस टाइम पे आते हैं जब चाइल्ड कई बार पेरेंट्स या कई लोग पूछते हैं कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट सच यंग चाइल्ड दैट ही इज़ और शी इज़ फेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना छोटा बच्चे को क्या एंग्ज़ायटी, क्या डिप्रेशन हो सकता है? But the moment the child detached from the home and when went to the school, यहाँ पे एक separation anxiety होती है. So that is also anxiety that he's facing, that he is dealing, and where when he moved to the school, यहाँ पे किस तरह का से फ्रेंड सर्कल मिल रहा है। कई बार कई बच्चे एकदम चुप रहते हैं, कई बार बिल्कुल विथड्रॉन टेंडेंसी में होते हैं कि उन्हें कुछ बोलना नहीं। कई बार आप देखेंगे बहुत से हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स रहता है, रेस्टलेस से रहते हैं। तो कई केसेस ऐसे आप देखेंगे कि प्राइमरी विंग में आपको बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ दिखेंगे। क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, दे आर नॉट एबल टू स्पीक, तो हमें लगता है वो कहाँ से क्या उनको किस तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होंगे। बट डेफिनिटली इफ देयर इज़ एनी इश्यू, जो अगर बच्चे को किसी तरह का सेपरेशन इश्यू है या फिर किसी तरह का ट्रॉमा है या ग्रीफ है, किसी तरह का लॉस है फैमिली में या सराउंडिंग में, उस पे कोई ग्रीफ है, तो वो जब रिज़ॉल्व नहीं होता है तो लेटर ऑन ये लाइफ में आगे बर्डन की तरह बढ़ता जाता है। एंड ऑफ कोर्स
आपके बच्चे की पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट करता है। सो आपका प्राइमरी अगर मैं कहूँ प्राइमरी में बहुत तरह के ऐसे इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका हो गया अ, आप बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है, तो इस तरह का अगर बच्चा है क्लास में बैठ नहीं रहा है, रेस्टलेस रह रहा है कि बिल्कुल फ़ोकस नहीं हो रहा है, इज़ नॉट डूइंग हिज़ वर्क, तो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। So the first, that's why we always say early identification is must, and we all should be we should all be trained in this way. That we can identify the child कि क्या issue हो सकता है इसे, किस तरह का behavioral issue है, academic issue है, teachers can also identify that. So अगर हाइपर एक्टिव बच्चा है, क्या कारण है उसके, हो सकता है फैमिली इस तरह की है, हो सकता है ही इज़ अ लोन चाइल्ड, बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड है, लैक ऑफ अटेंशन है उसका, और और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं, ट्रांज़िशन हुआ है, मे बी सिटी सा ट्रांज़िशन हुआ है, तो बच्चे को इश्यूज़ हो सकते हैं। So there are many factors that responsible for a simple hyperactive child, और of course अगर बच्चा ADHD है तो उसके लिए बहुत सारे किस तरह से हमें डील करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई स्पेशल एजुकेटर्स एंड काउंसलर आर देयर इन स्कूल्स, जो पूरी एक टीम की तरह काम करते हैं, ताकि स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, टीचर एंड पेरेंट्स दे वर्क कोलैबोरेटिवली एंड सॉल्यूशंस मिल सके इस पे। तो अगर हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स है, टीचर कैन गिव देम लॉट्स ऑफ टास्क, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, सो दैट दे मे फील सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ, मुझे कुछ टास्क मिला है। इसी तरह कई बच्चों की लो सेल्फ एस्टीम होती है, तो वी कैन मेक देम पार्टिसिपेट इन एवरी एक्टिविटी, कि ऐसा ना हो सिर्फ गिने-चुने ही कुछ बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाए। सो दैट्स व्हाई कोशिश यही करनी चाहिए हमेशा कि ऑब्जर्वेशन अच्छा रखे टीचर्स, एंड जब भी जैसे ही कुछ पता चले, टीचर नीड टू टॉक टू द काउंसलर एंड द स्पेशल एजुकेटर, एंड दे नीड टू रेफर टू द चाइल्ड। सो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ मिडिल एज में, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं बच्चों के, बुलिंग इश्यूज आजकल आप बहुत हाई लेवल पे हैं, एंड स्पेशली अटेंशन लैकिंग बहुत ज़्यादा है। बॉडी इमेज एक बहुत बड़ा इशू है इस एज ग्रुप में, जो हमारा मिडिल विंग आप कह सकते हैं 6 टू 8 क्लास तक का जो होता है। अब इस टाइम पे बच्चे 13 ईयर अराउंड होते हैं, टीन एज में एंटर कर रहे होते हैं, बहुत सारी चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, प्यूबर्टी पीरियड होता है, and they also have to manage that hormones. At the same time there are many behavioral changes, एंड उसके बाद में भी कई बार ऐसा होता है कि एज अ पेरेंट हम कई बार बच्चों से बोल रहे होते हैं, तुम अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, बड़े हो गए हो बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, या बड़े हो गए हो इतने तब भी अच्छे से नहीं बात करते हो। कई रीजंस होते हैं कि बच्चा किस तरह का व्यवहार कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ बॉडी इमेज जैसे इश्यूज़ की, कि अगर बच्चा, कई बार आप देखेंगे आजकल बच्चे मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो मीडिया की वजह से वो अपने कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ईटिंग डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे होते हैं, कि दे डोंट वांट टू ईट, अपने बॉडी इमेज अच्छा बनाने के लिए। इंसोमेनिया का इश्यू आता है बच्चों को, कई बार स्लीप डिसऑर्डर फेस कर रहे होते हैं। कई बार ऐसे बच्चे भी आप देखेंगे क्लास में, जो दे डोंट वांट टू पार्ट इन एनीथिंग, हमें किसी में पार्ट नहीं लेना है। टीचर अगर पूछती भी है तो नो मैम इट्स ओके, आई डोंट वांट टू पार्ट। तो वहाँ पे रीज़न क्या है? मे बी इज़ देयर एनी काइंड ऑफ बॉडी इमेज इश्यू? तो ये कई सिम्पटम्स होते हैं जो दैट वी नीड टू बी इक्विप आवर टीचर्स एंड काउंसलर्स, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई कि अगर बच्चे को इस तरह का कोई इश्यू है, बॉडी इमेज से रिलेटेड या किसी और तरह का इश्यू है, तो उसको वो कैसे हैंडल करें, और तुरंत हमें बच्चे को रेफर करना है टू द काउंसलर। सिमिलरली अगर मैं हायर लेवल की बात करूँ, सीनियर सेकेंडरी लेवल में बहुत से ऐसे रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, और बच्चों में सब्सटेंस अब्यूज़ के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग राइट नाउ, बट हियर the important part, we need to talk about that, so that students can be aware about the thing, that we have to go to the counselor or the teacher, and we can talk about it. It's not a stigma. कई बार बच्चे ये सोचते हैं काउंसलर के पास जाएँगे, नहीं वो सबको बात बता देंगी, ऐसा ना हो बाकी फ्रेंड्स मेरे क्या कहेंगे, पीयर ग्रुप क्या कहेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ समझनी है, दिस दैट इज़ व्हाई बहुत सारे इस तरह के अब हम सॉल्यूशंस पे बात कर सकते हैं, कि किस तरह से हम स्कूल में किस तरह से हम अवेयरनेस प्रोग्राम रन करें, जिससे कि स्टूडेंट्स बात करें अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में।
So this is how what we can say in every stage students are facing many challenges. अब बस इन challenges को उन्हें उनके बारे में हमें बात करनी है और उनके solutions पे वर्क करना है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया और आपको एक कमेंट भी दिया है व्यूअर ने। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड मैम, दिस सेशन विल बी वेरी यूजफुल। अभी एक और कमेंट आया, हाय मैम, मुझे ऑलवेज ओवर थिंकिंग होती है। चलिए उसके बारे में अभी बात करते हैं मैम। आपके क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में लेंगे ताकि एक सेशन का फ्लो ना डिस्टर्ब हो। तो बहुत ही इंसाइटफुल रहा मैम, ताकि टीचर्स को पता लग गया होगा कि प्राइमरी लेवल पे कौन सी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, मिडिल पे बॉडी इश्यूज वगैरह जो आपने डिस्कस किए, और सीनियर्स में सब्सटेंस अब्यूज वगैरह जो आपने बताया। तो टीचर्स विल गेट अवेयर एंड दे शुड be able to identify and then follow up the cases with their counselors and special educators. That is the message you wanted to deliver through this. और उसके अलावा मैम, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि मेंटल हेल्थ केवल हमारी इमोशंस को ही नहीं अफेक्ट करती, it also affects our personality, academics, and everything as a whole gets affected when our mental health is affected. तो अब मैं चाहूंगी कि आप कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएं। अगर मेंटल, ये जो आपने चीज बताए हैं कि बच्चे ये चीजें फेस करते हैं, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है उनकी पर्सनालिटी पर, दैट आई वुड लाइक माय व्यूअर्स टू नो। थैंक यू मैम। That's that is a major important part for our conversation because जनरली पब्लिक यही सोचती है कि इतनी हाई लेवल की बातें हम इतने छोटे बच्चों के लिए क्यों करें? फायदा क्या है अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या इससे लेटर ऑन क्या बिगड़ना है या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या consequences होंगे? So majorly if I say consequences we all are facing, एक हमारा पुअर हो रहा है, हमारे लॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, बच्चों के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, इरिटेटिंग बिहेवियर हो रहा है, राइट? इफ आई टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स के बारे में कि पुअर कंसंट्रेशन है, अटेंशन बिल्कुल नहीं लगता है, अटेंशन स्पैन ही बिल्कुल छोटा हो गया है। आप इतना ज्यादा रील्स स्क्रॉल करते हैं बच्चे की, कुछ समय बाद दे जस्ट स्क्रॉलिंग, दे डोंट नो कि हम कर क्या रहे हैं। तो देर आर मेनी फैक्टर्स, बट अगर ये चीज अटेंशन स्पैन आपका छोटा हो गया है एंड यू आर नॉट फोकसिंग, आपका फोकस ही नहीं बन रहा है, आप कंसंट्रेशन ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप आगे आपका एकेडमिक्स आपको सफर करेगा। अगर आप वर्क लाइफ में जाएंगे तो वहां भी यू कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग, आप बहुत क्विक चीजें चाहेंगे कि क्विकली चीजें वाइंड अप हो, आप पेशेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं बिहेवियरल इश्यूज के बारे में बात करूं कि बच्चों में बहुत तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स आ गए हैं इस समय आप देखेंगे कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, दोज हु आर इन्वॉल्व इन ऑनलाइन गेमिंग और ऑफ कोर्स मोबाइल और अदर स्क्रीन, सोशल मीडिया, एंड दे आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग कि जिसकी वजह से स्क्रीन टाइम बढ़ने से या और भी रीजन है जिनकी वजह से बच्चों के स्लीप इश्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एक पर्सन ने अभी यहाँ पे लिखा कि ओवर थिंकिंग, दैट्स अगेन अ मेजर रीजन ऑफ दिस सिम्टम कि स्लीप डिसऑर्डर आगे आपका बन जाता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एक पॉइंट आया कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लो सेल्फ स्टीम होती है, उन्होंने देखा कि मेरा पीयर ग्रुप से मेरे फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, और इफ देयर इज अ बुलिंग और इफ देयर इज अ ग्रुप से अगर एक्सक्लूड कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप या किसी ग्रुप से बच्चों ने एक्सक्लूड कर दिया, तो पेयर ग्रुप क्यों सोच रहा है, क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस थिंग एंड बार बार उन्हीं चीजों पे सोचते रहना, और जिससे उनकी स्टडीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी नॉर्मल रूटीन पे इम्पैक्ट करता है, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी खुश
रहने का क्वेश्चन, वी कैन से हैप्पीनेस क्वेश्चन पे वर्क कर इफेक्ट पड़ता है। उनका इमोशनल रेगुलेशन पुअर हो जाता है कि अगर कोई उनसे कोई बात कहता है तो वो तुरंत हाइपर हो जाते हैं, तुरंत गुस्सा करने लगते हैं, बहुत आर्गुमेंटिव हो जाते हैं। तो रीजंस बहुत सारे हैं, सिम्पटम्स हम सभी को दिख रहा है बच्चों में कि ये कंसिक्वेंसेस आपके लेटर ऑन लाइफ में जब धीरे-धीरे जब ये आप कहेंगे जब इनको हम डील नहीं करते हैं, जब ये अनएड्रेस्ड रहते हैं तो इट कैन कन्वर्ट टू हायर क्लास में, जब बच्चे को अगर छोटे लेवल पे इश्यूज हैं और व्हेन इट इज अन एड्रेस्ड तो द स्टूडेंट्स में टर्न दीज इश्यूज एज अ डिसिप्लिन इश्यूज में टर्न हो जाता है। बच्चे कई बार बहुत से बंक करते हैं, डिसिप्लिन इश्यूज, रिस्क टेकिंग बिहेवियर करते हैं, लेते हैं, और एडल्टहुड में ये आगे चलकर और रिलेशनशिप इश्यूज में प्रॉब्लम आती है, उनके सराउंडिंग के एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, वर्क लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर अभी मैं फेस कर रहे हैं हमारे बच्चे वो चीजें, एंड जो स्टूडेंट हम जिन बच्चों को डील कर रहे हैं स्कूल में, they are facing these many issues, and it's not like parents are only responsible because most of the time they're spending in school also. आप कई टीचर्स दे नो इन अ बेटर वे कि हर बच्चे को, अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो बच्चे को सबको जान रही होती है वो टीचर, क्योंकि कई बार वो क्लास में आती है, हर बच्चे से इंटरेक्ट कर रही होती है, हर बच्चे के बारे में टीचर को पता होता है कि ये मेरा बच्चा ऐसा है, इस लेवल पे है, या उसको ये प्रॉब्लम है। बट द थिंग कि अब हमें स्टेप लेना है कि अगर बच्चे को इस तरह के इश्यूज हैं तो उनको अब हमें आगे उन्हें रेफर करना है काउंसलर को और थेरेपिस्ट को, कि अगर बच्चे को इश्यूज आ रहे हैं तो ये तो बेसिक चैलेंजेस हो गए, जैसे एकेडमिक हो गया, बिहेवियर हो गया, कई ऐसे इश्यूज हैं जैसे ट्रॉमा इश्यूज है कि बच्चे के साथ में कई ऐसे इश्यूज आते हैं जो वो बच्चे नहीं शेयर कर पाते हैं और लेटर ऑन लाइफ में उनकी पर्सनालिटी हैम्पर करती है, और बहुत तरह की मेंटल इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन जैसे है, या पैनिक अटैक्स हैं, या बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आते हैं कि दे कैन नॉट एडजस्ट विद द पीयर ऑल्सो, एंड सोशल विड्रॉल और आइसोलेशन। ये बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम देख भी रहे हैं आजकल अपने स्टूडेंट्स में, एंड ऑफ कोर्स अब उन पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने एक आप सभी ने अगर सुना होगा, साइकोलॉजी का एक टर्म है सोमैटिक इश्यूज, तो कि किस तरह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बॉडी में चेंज हो जाते हैं, किस तरह से फिजिकली चेंज हो जाते हैं वो। तो ये भी एक बहुत पुअर consequence है जो हमारे स्टूडेंट्स या अडल्टहुड में या एडोलसेंट एज में फेस करते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि खाली गुस्सा दिखाया बच्चे ने तो बस ठीक है, उसको डील कर लेंगे, डांट लेंगे, हो जाएगा ठीक। नो, देयर व्हाई ही इज डूइंग दिस बिहेवियर, उसके पीछे रीजन क्या है। क्या हमने उन्हें बच्चों को ये लाइफ स्किल बेसिक सिखाए हैं कि किस तरह से हम क्रिएटिवली एंड किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हाउ वी थिंक क्रिटिकली, हम किस तरह से कम्युनिकेशन करें, लीडरशिप हमारे किस तरह से होना चाहिए, टीम में वर्क कैसे करना है, यहाँ पे हमें इन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है। सो दीज वर द इश्यूज दैट consequences that students can may face. Okay, ma'am. Thank you so much for that answer. और आई थिंक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स तो अभी बहुत लोगों को नहीं पता होंगे, तो आज आपने उन्हें उससे भी अवगत करा दिया। रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट, मैम। और इसके बाद मैम, अब हमने सारी चैलेंजेस की भी बात कर ली, कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में उसकी भी बात कर ली। अब हम आते हैं सॉल्यूशन। क्या करें हम एज अ स्कूल, हम एज अ टीचर, हम एज अ पेरेंट, कि बच्चे को हम थ्राइव, so that the child can thrive in a better way? What can be done? I would like to know that, ma'am, and my viewers would definitely like to know ki what steps they can take so that this child can thrive better. कुछ चीजें आपने अभी बताई थी, लाइफ स्किल्स वगैरह, अब थोड़ा डिटेल में इसको हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए। Yeah, thank you, Kavita ma'am. Yeah, definitely we need to work on this thing, ki how school can work together with the parents and with teachers in a collaborative manner. As I starting से मैं एक ही चीज बोल रही हूँ कि parents, teachers and school को and student को
हमें काउंसलर को सभी को एक कोलैबोरेटिव मैनर में वर्क करना है। इट्स नॉट अ ड्यूटी ऑफ अ टीचर कि अगर स्कूल में है तो सिर्फ टीचर ही देखेगी, इट्स ओके हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं है वहाँ पे। एंड इवन अगर टीचर भी देख रही है तो इट्स नॉट लाइक कि अगर कोई इशू है शी नीड्स टू रिफर दैट, एंड अब पेरेंट्स को भी हमें इन्फॉर्म करना है, अवेयर कराना है कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि जितना पेरेंट्स को भी पता चलेगा तो इन अ कोलैबोरेटिव मैनर वी कैन वर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से कि एक तो सबसे पहला हमें एक सेफ स्पेस बनाने की ज़रूरत है, एक सपोर्टिव स्पेस बनाने की ज़रूरत है अपने स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि दिस इज़ द पर्सन, ये मेरे काउंसलर हैं, चाहे वो प्राइमरी विंग में हो, चाहे हायर लेवल पे हो, जिस लेवल पे भी है या पूरे स्कूल में अगर एक काउंसलर है, तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, दे शुड बी अवेयर कि ये पर्सन है जिनके पास मैं जाऊँगा अगर, सो माय थिंग्स विल बी कॉन्फिडेंशियल। ऐसा नहीं होगा, दे आर फॉलोइंग देयर एथिक्स, दे आर नॉट पब्लिक इट कि कुछ भी कहीं भी बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो उसके लिए यहाँ पे काउंसलर्स को वर्क करना ज़रूरी है कि एवरीडे जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन होते हैं या कभी आपको अगर किसी तरह की क्लासेस मिलती हैं तो आपको वहाँ पे अवेयर करना है अपने स्टूडेंट्स को कि वेयर यू हैव टू गो, अगर किसी तरह का इशू है तो आपको कहाँ आके बताना है। सिमिलरली आपका टीचर्स को अगर मैं कहूँ, टीचर्स को भी इक्विप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचर शुड बी वेरी empathetic, they should know about the psychological first aid. What does it mean ki, because firstly child comes to the teacher, and the teacher when she knows okay the child is facing these are issues and he is helpless and he needs some help, so let refer the child to this person. But before that जब तक हम refer करते हैं फर्स्ट एड हमें देना जरूरी है। सो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड टीचर्स को पता होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा आया है उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके, तो ऐसा नहीं उन्हें जनरली स्टाफ रूम में बैठ के उसके बारे में बात करनी है। दे नीड टू टॉक ऑन दैट वन टू वन, उस पे वर्क करना है कि ओके इट्स ओके, अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हो, किसी तरह का अगर इशू है तो हम उस पे मिलके वर्क करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल से कुछ वर्ड्स होते हैं जो कई बार बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को। लेकिन अगर वहीं पे अगर इफ द टीचर इज बिजी और समवेयर और इफ शी इज कंप्लीटिंग हर सिलेबस, तो वहां पे अगर वो नहीं ध्यान दे रही है तो वो अनरिजॉल्व सा रह जाती है चीज। तो इम्पोर्टेंट इज द टीचर शुड बी एम्पैथेटिक। इसके लिए कई जैसे कि सीबीएसई इज वर्किंग फॉर दैट, और बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, सीपीडीज एंड जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसीलिए कंडक्ट किया जा रहा है, so that teachers also can understand the things कि what are the ways how can we handle our students, और अगर special child है तो उसको कैसे हम handle कर सकते हैं, how can we refer, what are the process, the teacher should know this thing again। जैसा कि आई सेड कि सेफ स्पेस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे को पता होना चाहिए दिस इज द प्लेस, दिस इज अ काउंसलर्स रूम वेयर आई नीड टू गो, एंड इट द काउंसलर रूम शुड बी इक्विप्ड विद मेनी थिंग्स, कि अच्छा आइसोलेटेड आई मीन अच्छा सा शांत वातावरण, वहाँ का लाइटिंग, और एक अच्छा सा रूम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि कहीं भी बैठा दिया, जहाँ पे बच्चे अच्छे से बात कर सकें, अपने मन की पूरी बात कह सकें, और काउंसलर्स को भी वेलकमिंग होना चाहिए। सो कई स्कूल्स में अभी भी काउंसलर्स नहीं हैं, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्कूल्स टू वर्क ऑन दिस, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे टीचर्स से बहुत कनेक्टेड होते हैं, बट अगेन काउंसलर हु इज ट्रेन्ड इन दिस थिंग कि हाउ कैन दे यूज द थेरेपीज एंड टेक्निक्स, दे विल वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो जैसा कि कहा मैंने, सेफ स्पेस, एम्पैथेटिक टीचर्स का होना ज़रूरी है। दूसरा हमारी पॉलिसीज़ पे वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है हर स्कूल को। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं स्कूल्स में, तो पॉक्सो कमिटी होना, पॉश कमिटी है, इस तरह से आपका डिफरेंट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी पॉलिसी होनी चाहिए। जैसा कि अगेन आई विल से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा इस पे बहुत कुछ काम किया जा रहा है। बहुत सारे ट्रेनिंग रिसोर्स हैंडआउट्स निकाले जा रहे हैं जो टीचर्स को हेल्प कर सकते हैं, और कई तरह के आयुष्मान भारत के अंडर बहुत सारे इस तरह के एनसीईआरटी ने भी बहुत सारी बुक्स लॉन्च करी हैं, बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज हैं जो अगर टीचर्स चाहें तो कर सकते हैं, टू नो अबाउट, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग, कि हम किस तरह से मेंटल हेल्थ पे वर्क कर सकते हैं।
तो बहुत सारी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो स्कूल में उन पे ध्यान देना चाहिए। डिसिप्लिन इश्यू अगर है तो किस तरह से उसको हैंडल करना है सिंसियरली, और किस तरह से अगर मेंटल हेल्थ इश्यू आ रहा है तो किस तरह से हमें अगर कोई केस काउंसलर के हाथ से बाहर का है तो किस तरह से उसे रिफर करना है। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर्स। उसके साथ में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस फैलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मेंटल हेल्थ डे वी सेलिब्रेट ऑन 10th ऑफ अक्टूबर, राइट? तो इसी तरह आई मस्ट से कि गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दिस, और बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है ये, कि अभी जैसे सीबीएसई का भी है, इस पे वर्क हो रहा है, और डीओई भी इस पे वर्क कर रही है कि किस तरह से आपको अगर 1 वीक यू हैव टू सेलिब्रेट, आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज करनी टू इन्वॉल्व ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ द स्कूल। कि आप चाहे ग्रेटिट्यूड ट्री लगाएं, चाहे कोई पोस्टर मेकिंग कर रहे हैं या फिर पेबल पेंटिंग कर रहे हैं, जस्ट इन्वॉल्व आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, जस्ट मेक अ कोलैबोरेटिव टास्क अलोंग विद ऑल टीचर्स, कि आप डांस थेरेपी के थ्रू भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये मेंटल हेल्थ वीक कैसे सेलिब्रेट करना है। इफ द लाइक प्रॉब्लम बुलिंग इज अगेन अ मेजर प्रॉब्लम, तो how can we celebrate anti-bullying month in November and the week in the November month? So जिससे कि बच्चों को ये याद रहे कि हाँ, एंटी बुलिंग मतलब हमें बुलिंग के खिलाफ बोलना है। वी डोंट नीड टू बेयर बुलिंग। इफ somebody will bully me, तो आई हैव टू से नो एंड टेल टू माई एल्डर्स, राइट? सिमिलरली पॉक्सो से रिलेटेड कई चीजें हैं कि कैसे हमें उसके जानकारी होना है। तो अवेयरनेस इज मेजरली इम्पॉर्टेंट, और अवेयरनेस ही होगी तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी स्टिग्मा टूटेगा, एंड देन दे विल डेफिनेटली कम टू अस एंड टॉक अबाउट देयर थिंग्स where we will work. So these are the major things that we can work, and our viewers also can throw light on this कि और क्या क्या, अगर मैं कुछ स्किप कर रही हूँ तो वो भी बता सकते हैं कि किन चीजों पे हम स्कूल में वर्क कर सकते हैं। तो मेजरली जैसे कि अगर कुछ टेक अवे कहूँ तो लाइक सपोर्टिव एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट, टीचर्स का एम्पैथेटिक होना एंड स्टाफ का एम्पैथेटिक होना इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स को मिल के कोलैबोरेटिव वर्क करना है। इट्स नॉट कि मेरा काम नहीं है, इट्स योर ड्यूटी, आप देखिए कैसे वो बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। हमें मिल के वो कंप्लीट करना है अपने बच्चे के लिए। एंड एक काउंसलिंग कॉर्नर, एक काम कॉर्नर होना ज़रूरी है, जहाँ पे वी कैन डिस्कस द थिंग्स, जहाँ बच्चा आके अपनी शेयर कर सके चीज़ें, और जहाँ पे एथिक्स को फॉलो करना भी इम्पोर्टेंट है। इट शुड नॉट बी पब्लिक कि हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, अपने रूल्स को, अपने एथिक्स को ध्यान में रख के उन चीज़ों को फॉलो करना है। एक और बहुत अच्छा आई मस्ट से कि सीबीएसई स्कूल्स में बहुत अच्छा एक पीयर मेंटर एजुकेटर प्रोग्राम भी रन कर रही है, दैट इज इन द कोलैबोरेशन विद एक्सप्रेशन इंडिया, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है कि किस तरह से हम छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं पीयर एजुकेटर्स के, एंड दे विल इम्पार्ट नॉलेज। वो उन चीजों के बारे में बात करेंगे अपने जूनियर से। It's again another good step. So this is how we all school have to work together, and of course, in a collaborative manner, we can. इसीलिए तो मैंने भी पीयर एजुकेशन प्रोग्राम अपने स्कूल में भी शुरू किया है। एक वेलनेस विजिट के नाम से एक ग्रुप बनाया, उसमें बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ कि कैसे दे हैव टू यूज द फ्रेजेस, लाइक यू आर टेलिंग फॉर द टीचर्स कि दे शुड बी एम्पैथेटिक, दे शुड यूज the different phrases so that the child feels connected to them. The same I'm doing with these children. Thank you so much, ma'am, for this insight. I would request you to answer one of the question of my subscriber. He is my regular viewer. I don't know whether means like I think he is a student only. Nikunj. He has asked, ma'am, how to manage time. I'm always stuck in a school work and not able to do self study. तो मैम इस पे आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए इसको, मतलब मेरे व्यूअर को, तो इट वुड बी माय प्लेजर। Nikunj, thank you, Nikunj, for this question. Actually, most of the students are facing right now this issues कि स्कूल का आप whenever you're going to the higher level, आपका workload बढ़ता ही जा रहा होता है, and there is a pressure also, एग्जाम का stress है, and साथ में you have to complete the assignments, और उसके बाद में आपको अपना self study के लिए भी time निकालना बहुत जरूरी है, right?
आई ऑलवेज से देर आर मैनी टेक्निक्स टाइम मैनेजमेंट की, बहुत सी टेक्निक्स हैं। और अगर इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप टू सेट अ गोल, दिस इज माई गोल, so right now our goal is to get a good marks in this exam, right? Like if I say you are in maybe you are 10th 11th, जिस भी क्लास में हो आप, अगर आपका एक आपने गोल सेट करा एंड जस्ट राइट इट समवेयर, दिस इज माय गोल, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट कि ये आपका एक गोल है, अब इस पे शॉर्ट टर्म मुझे गोल्स बनाने हैं। एंड डिवाइड योर वर्क, आपका जो भी आप स्टडी सेल्फ स्टडी के लिए आप बात कर रहे हो, मुझे तो ये सबसे अच्छी बात लगी, बिकॉज नाउ डेज स्टूडेंट्स आर नॉट फोकसिंग ऑन सेल्फ स्टडी, दे आर लाइक कि ठीक है एग्जाम आएगा उससे पहले हम कर ही लेंगे, कुछ चीजें हो ही जाएगा। बट एक्चुअली इफ वी काउंट 24 आवर्स में से अगर हम आई मीन 9 आवर्स भी हम सो रहे हैं, 8 आवर्स भी सो रहे हैं, मैक्सिमम 7 आवर्स ही चाहिए होते हैं हमें, उसके बाद भी अगर हम चाहें तो एक एक घंटे को हम मैनेज कर सकते हैं। वी हैव दैट मच ऑफ टाइम, टाइम इज द मनी राइट नाउ। बट देर आर मेनी टेक्निक्स कि अगर आप जैसे आप डिवाइड करते हो अपने टाइम पीरियड को, कि अगर आप कोचिंग जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, वहां से आए हो, कुछ टाइम अपने स्पेंड करा फॉर क्रिएटिव थिंग, फॉर एक्सरसाइज, बट नॉट ऑन द फोन। क्योंकि हम मेजरली स्क्रीन टाइम पे हम कई बार फोन या नोटिफिकेशन आता है, हम कई बार उस पे अपना ध्यान लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फोकस अपनी स्टडी से हट जाता है। इवन वी ऑलवेज सिट विद आवर फोन, बच्चे हम जनरली फोन के साथ में ही बैठते हैं, तो नोटिफिकेशन आया, पिंग करा, हमारा ध्यान तुरंत उधर जाता है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई कि मैं टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट आर द रीजंस, किन वजह से, क्या मैं फोन पे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ, या मैं फिजिकल या टीवी में या स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है मेरा, या फिर मेरा अटेंशन ही नहीं लग रहा है, या फिर मैं किसी और थॉट प्रोसेस पे ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, मे बी वो फ्रेंड्स का हो सकता है, पेयर ग्रुप का हो सकता है, किसी फ्रेंड का हो सकता है। तो किन चीजों की वजह से मैं टाइम अपनी स्टडी में नहीं दे पा रहा हूँ। तो इफ यू वांट टू डू डेली का टास्क आप डेली करोगे तो डेफिनेटली आपके असाइनमेंट्स तो हो ही जाएंगे। बट सेल्फ स्टडी के लिए अगर कई बार हमें टाइम नहीं मिलता है, तो हाफ एन आवर भी अगर आप निकालते हो, कि हाफ एन आवर भी मैंने वो कुछ चीज रिवाइज करी है, जैसे मेरा अगर सिस्टी का है 10th क्लास में, अगर कोई चैप्टर है तो इतना सिलेबस है उसमें, मैंने अगर अगर एक टॉपिक ही मैंने वो रिवाइज कर लिया, तो इट्स वर्किंग, आप उस पर वर्क कर रहे हो। तो डेफिनेटली इन चीज़ों पे टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप पोमोडोरो एक टेक्नीक होती है, उस पे भी वर्क कर सकते हो, या फिर अगर आप कई बार बोर हो रहे हो, तो आप 20-20 एक्टिविटी कर सकती हो, कि आप आधा घंटा आपने अपना काम किया, आप उठे 5 मिनट, आप 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर की आपने चीज़ें देखी, और 20 सेकंड के लिए उसको फ़ील करा, और जिससे कि आपको आप एटलीस्ट आप या ट्री जैसे या फिर कोई दूर की चीज आपने देखी, राइट? तो इस तरह के आप एक्टिविटीज करके अपने को रिफ्रेश कर सकते हो। बट अगर आप उठे अगेन आपने अपना फोन यूज करा, एंड यू आर नॉट एक्चुअली रिफ्रेशिंग योरसेल्फ, आप अपने को ओवर बम्बार्डिंग कर रहे हो इन्फॉर्मेशन से, राइट? सो हेयर फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट आर द रीजन कि किन वजहों से हम नहीं कर पा रहे हैं अपना टाइम मैनेजमेंट। एंड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत सिंपल टास्क है, हमें बस अपने आवर्स को मैनेज करना है, कि इन आवर्स में मैं ये कर सकता हूँ, राइटिंग अगर मैं 1 आवर में कर सकता हूँ, तो हाफ एन आवर में अपनी सेल्फ स्टडी को दे सकता हूँ। सो इट्स बेसिकली कंसिस्टेंसी, कि आप कितना कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो। Thank you so much for answering. So, dear Nicole, you have to schedule your time. Start scheduling, and you will get the time for self study. And also, do not panic so much. Do not perceive that you are lacking time. Time हमारे पास बहुत है. ओके आप उसको ऐसे ना परसीव करो, आप ये देखो कि एक चैप्टर जब आप क्लास में पढ़ रहे हो, फिर आप वो ट्यूशन में पढ़ रहे हो, तो जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो उसमें आपको लेस टाइम ही देना होगा, क्योंकि आपने उस समय भी अटेंशन पे करके, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो ही तभी आप इस चीज की बात कर रहे हो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपने पहले भी ध्यान दिया है, बस आपको थोड़ा आप एंक्शस हो रहे हो कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो एंक्शस होने की बजाय अगर थोड़ा सा, और ये एंक्शस होना भी नॉर्मल है, क्योंकि हमको लगता है कई बार कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन टाइम हमारे पास होता है। देखिए सबके पास टाइम ही एक ऐसा फैक्टर है जो कभी भी किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ना रिच ना पुअर। ऑल ऑफ अस हैव 24 hours. It is up to us how we utilize those 24 hours. So I True. hope
if Nikunj, you are still there, you can tell me if you have any other query. और मैम ओवर थिंकिंग पर मैम ने थोड़ा सा कवर कर ही लिया था, और उसके अलावा आप चाहें तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी है ओवर थिंकिंग पर, वो भी आप वॉच कर सकते हैं. और थैंक यू सो मच मैम फॉर योर presence here, for your valuable time which you have given to my Thank platform. you. I am Thank really you. grateful for this same, and I hope my viewers would now had been acquainted with that mental health is not a privilege, but it is a necessity. Let's Yes. talk about it always. Let's Yes. talk about, maybe अभी उतनी इतनी एडवांस चीजें नहीं आई, जैसे मैम ने अभी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के बारे में बताया. बहुत कम ही लोग होंगे जिनको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के बारे में पता होगा. तो धीरे धीरे जब हम बात करेंगे तभी अवेयरनेस बढ़ेगी. तो True. टॉकिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. शोइंग योर कंसर्न कथासिस हो जाती है केवल बात करने से ही. जैसे आपने अभी मेरे साथ डिस्कस किया टाइम मैनेजमेंट, ओवर थिंकिंग, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आ जाते हैं, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है उसी से. सो टॉकिंग इज वेरी गुड. और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी तक जो व्यूवर्स मेरे साथ बने हुए हैं उनका सब्सक्रिप्शन तो पक्का है मेरे लिए. Isn't it? Please write in the comment section. Please, dear viewers, jokes apart, if you are really liking my work, then please do like, share, and subscribe. And also share my videos with your students for class 12 psychology. I had organized all the material. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Okay. Kavita ma'am. Thank you so much for inviting me and for this wonderful conversation. At least when we are talking about, definitely उस पे हम work भी करेंगे. और I must say कि जो भी हमारे viewers हैं, अगर उन्हें कभी लगता है तो we can connect and we can solve the issues and बिल्कुल आप लोग मैम, आप भी हमारे भी व्यूअर्स को अपना नंबर अगर आप शेयर करना चाहें तो नंबर शेयर कर दीजिए, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू इफ दे आर फेसिंग एनी इशू. yeah, If yeah. you wish, you can share your number with them, or you can prepare some handle. I'll share it as a post for them. As Yes, you. ma'am. Yes, ma'am. Fine. Thank Okay. you so much. Okay. Thank you so Bye, much, ma'am. ma'am. Thank you. Bye.